पोर्शन था मिड से पहले का, और इस ये आपने मिड तक डिस्कस कर लिया था। असल में मैंने इस सिलेबस को जो है ऑपोजिट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आपके साथ बीएस थर्ड के भी स्टूडेंट्स थे, और बीएस थर्ड वाला ये पहला पोर्शन पढ़ चुके थे, तो इसी वजह से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये दोनों चैप्टर्स उनको भी आप पढ़ाए और आप लोगों को भी मैंने पढ़ाए थे। अब मिड के बाद जो है हम लोग लास्ट चैप्टर जो है इस कोर्स का डिस्कस करेंगे। लास्ट चैप्टर जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स का है। अब आज जो है ज़्यादा डिटेल तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहला लेक्चर स्ट्रेंथ आप लोगों की कम है, तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। बाकायदा लेक्चर जो है हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे। तो जो है स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बुक्स इसकी वही हैं जो पहले मैंने आपको बुक्स बताई थी। यही बुक्स जो है इस चैप्टर के लिए भी रिकमेंडेड है। इन्हीं बुक्स में ये भी सारा टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। अब ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है, और इससे रिलेटेड चीज़ें आप जो है एफएससी में भी पढ़ चुके, मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ चुके, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर फर्दर इलेबोरेट किया गया। अब नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आएंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी सॉलिड को एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसका बिहेवियर यहाँ पर देखा जाएगा। अब विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के जो टॉपिक्स थे ये मैटर की लिक्विड और गैसियस स्टेट के साथ एसोसिएटेड थे, यानी कि विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन लिक्विड या गैस की प्रॉपर्टी थी। ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ये मेनली हमारे पास सॉलिड के प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। ये सॉलिड के साथ जो है एसोसिएटेड होता है। तो इसको जो है सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, वो वीडियोस आप देखो तो आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होगा। फिर उसके बाद हम इसको लेक्चर जो है देखते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली वीडियो आप लोग देखो। Stress and strain are fundamental concepts that are used to describe how a body responds to external loads. In this video, we'll explore these concepts. Stress and strain are fundamental concepts that are used to describe how a body responds to external loads. In this video, we'll explore these concepts using the simple example of a loaded bar. Here we have a solid metal bar that is loaded by two equal but opposite forces. We refer to this as uniaxial loading because all of the applied loads are acting along the same axis. The two forces are pulling the bar, causing it to stretch. Internal forces will develop within the bar to resist these applied forces. We can expose these internal forces by making an imaginary cut through the bar. I chose to remove the right side of the bar, but I could have removed the left side instead. For any imaginary cut like this one, the internal forces develop in such a way that equilibrium will be maintained. In this case, the effect of the internal forces acting on the cross-section created by our cut will be equal to the effect of the applied external force. I have represented the internal forces as 4 separate forces here, but I could have represented them as 1 or even 20 forces. In reality, the internal forces are distributed over the entire surface of the cross-section. For this reason, it doesn't make much sense to talk about specific internal forces. Instead, it is better to talk about stress. Stress is a quantity that describes the distribution of internal forces within a body.
It makes it easier to discuss the internal state that develops within a body as it responds to externally applied loads. Stress is a measure of the internal force per unit area, and so has units of newtons per meter squared in SI units, and pounds per square inch in US units. Newtons per meter squared are also called pascals. In the case of our axially loaded bar, the internal forces are acting perpendicular to the direction of the cut we made. This type of stress is called normal stress. We can calculate the normal stress in our bar as the applied force F divided by the cross-sectional area A of the bar. It is denoted by the Greek letter sigma. One reason being able to calculate stresses is important is because it allows us to predict when an object will fail. Let's say our bar is made from mild steel, which has a strength of 250 megapascals. The bar will fail when the stress within it exceeds the strength of the material. If our bar has a diameter of 20 millimeters, for example, we can calculate that it will fail if the applied force is larger than 79 kilonewtons. Normal stress can be either tensile or compressive. In this case, the stress is tensile, because the forces are stretching the bar. If the forces were trying to shorten the bar, we would have a compressive stress. The sign convention that is normally used is that tensile stresses are positive values and compressive stresses are negative values. In the case of our bar, it is reasonable to assume that the stresses are distributed uniformly across the cross-section and along the length of the bar. But this is a very simple scenario. The stress distribution in a beam that is bending, for example, will be more complex. Stresses will be tensile on one side of the cross-section, but compressive on the other. Strain is a quantity that describes the deformations that occur within a body. If we fix our bar at one end and apply a force to the other end, the force will cause the bar to deform. The normal strain within our bar associated with this deformation can be calculated as the change in length of the bar delta L divided by the original length L. Strain is a non-dimensional quantity and is often expressed as a percentage. Normal strains can be tensile or compressive. I mentioned earlier that the concepts of stress and strain are closely linked. The relationship between the two can be described using a stress-strain diagram. Stress-strain diagrams are different for different materials. We can obtain the diagram for a specific material by performing a tensile test. This involves applying a known force to a test piece and measuring the stress and strain in the test piece as the applied force is increased. Stress-strain diagrams for ductile materials like this one show that there is an initial region for low strain values where the relationship between stress and strain is linear. Deformations occurring in this region are fully reversed when the load is removed, and so are said to be elastic. This linear relationship between stress and strain is defined by Hooke's law. The ratio between stress and strain is called Young's modulus, which is an important material property. Hooke's law usually only applies for small strains. For larger strains, the relationship between stress and strain is no longer linear. Deformations are not reversed when the load is removed, and we have permanent plastic deformation. You can learn more about stress-strain curves in my videos about Young's modulus, and about material strength, ductility, and toughness. So far, we have only talked about normal stress, which is stress acting perpendicular to a surface. The other type of stress is shear stress. If our bar isn't loaded along its axis, but instead perpendicular to its axis, like this, the internal forces that develop within it are oriented parallel to the bar's cross-section.
These internal forces are called shear forces. Shear loading is common in bolts, for example. Once again, it is helpful to use the concept of stress to talk about the internal shear forces within the bar. Shear stress is denoted by the Greek letter tau and can be calculated in a similar way to normal stress, as the applied force F divided by the cross-sectional area A. This is actually an average shear stress, since the internal forces will not be distributed evenly across the cross-section. We can better understand shear stresses by looking at the stresses acting on a small element within our bar. We have a shear stress on one face of the element, but the element needs to be in equilibrium, so we must also have shear stress on the opposite face, in the opposite direction. And to maintain rotational equilibrium, we must also have two additional shear stresses, as shown here. These four stresses all have a magnitude equal to tau, and define the shear stresses acting at a single location. Shear stresses cause a rectangular object to deform like this. We have deformation, so of course we also have strain. Shear strain is defined as the change in angle shown here, and is denoted by the Greek letter gamma. Hooke's law also applies for shear stresses and shear strains, but the ratio between them is the shear modulus G instead of Young's modulus. Although I have discussed normal and shear stresses separately so far, the stress state at a single point within a body will actually have components in both the normal and the shear directions. The magnitudes of the normal and shear components will depend on the angle of the plane we are using to observe the stresses. In our bar with uniaxial loading, the plane we used to make the imaginary cut was perpendicular to the axis of the bar, and so we had normal stresses but no shear stresses. If we instead use an inclined plane to cut the bar, we will have both normal and shear stress components. The stress element is commonly used to represent the stresses acting at a single point within a body. This is the stress element showing the normal and shear stresses acting at a single point for a two-dimensional case. For a three-dimensional case, the stress element looks like this. That's it for this introduction to stress and strain. Having a solid understanding of these concepts will be important for grasping more advanced topics like torsion and beam bending that I will cover in separate videos. If you are interested in learning more about normal and shear stresses, ये आप लोगों ने देखी वीडियो, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली हम मैकेनिक्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ मैटर मतलब कि जब मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी ये कहलाती हैं कि जब आप सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करो तो वो क्या बिहेवियर शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर अब पिछले दो टॉपिक्स के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे कि वहाँ पर हम लोग लिक्विड और गैस के साथ डील कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग सॉलिड्स के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि फोर्सेस अप्लाई करने से सॉलिड इस तरह से बिहेव करता है। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो इस तरह से है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को और मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द सॉलिड को स्टडी करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो वो अब हम क्या करेंगे, वो टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज जो कि इस्तेमाल होती हैं मैकेनिक्स ऑफ मैटर को समझने के लिए उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म तो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच body regains its original size and shape when applied force is removed is known as elasticity and the body is known as elastic body। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और वो फोर्स जाके उसमें डिफॉर्मेशन या किसी किस्म की चेंज प्रोड्यूस करे और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करो तो वो वापस डिफॉर्मेशन ख़त्म हो जाए या वो चेंज ख़त्म हो जाए,
तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी कि बॉडी जब अपनी ओरिजिनल हालत या शेप को रीगेन कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये जो प्रॉपर्टी है रीगेन करने की शेप और साइज को, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। और ये जो बॉडी है ये इलास्टिक बॉडी कहलाती है। एग्जाम्पल रबर, स्प्रिंग, स्किन, स्टील, आयरन, ये सब चीज़ें जो है एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी है। इसी तरह से प्लास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच body does not regain its original size and shape when applied force is removed is known as plasticity, and the body is known as plastic body. अब अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के अंदर साइज या उसकी शेप में किसी किस्म का चेंज आ जाए, और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करो तो उसकी जो है वापस ओरिजिनल हालत रीगेन ना हो, यानी कि जो चेंज थी वो परमानेंट हो जाए, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी बॉडी की ये प्लास्टिसिटी कहलाएगी। और वो जो बॉडी होगी वो प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी। प्लास्टिक, पेपर, क्ले, ये जो बच्चे जिससे खेलते हैं, प्लास्टिसिन जिसको हम लोग कहते हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, आटा जो गूंदा हुआ होता है उसको भी आप देखो, वो भी इसी तरह प्लास्टिक मटेरियल है कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी जो शेप है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है। इसी तरह से रबर जो है, रबर की बॉल होती है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, शेप चेंज होती है, मगर जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है, तो वो इलास्टिक होती है। और इसी तरह से क्ले जो है वो प्लास्टिक हो। इसी तरह से रिजिडिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच body does not change its original size and shape when force is applied is known as rigidity. अब rigidity क्या है? rigidity का मतलब है कि बॉडी कितना जो है एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है और उसकी शेप और उसका जो साइज है वो चेंज ना हो। That type of property is called as rigidity. एग्जाम्पल जो है ब्लैक बोर्ड, डस्टर वगैरह रिजिड बॉडीज में आ जाते हैं। अब मटेरियल्स को समझने के लिए मैंने कहा कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले स्टडी करेंगे। तो ये हमने 3 टर्मिनोलॉजीज देखी। इसी तरह से प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए फर्दर जो हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं उनमें स्ट्रेस शामिल है, स्ट्रेन है, और इसके बाद हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है या इलास्टिक मॉड्यूलस है। अब स्ट्रेस क्या होता है? जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो फोर्स उस बॉडी का साइज या शेप चेंज करती है, तो वो बॉडी क्या करेगी? वो अपनी ओरिजिनल हालत को रीगेन करने की कोशिश करती है और एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज स्ट्रेस। अब जैसे किसी भी वायर को आप एक्सटेंड कर रहे हो, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, ये जो है एक रॉड है मेरे पास किसी भी मेटल की, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या इस साइड से किसी सपोर्ट के साथ इसको अटैच कर देता हूँ इस एंड को, और दूसरे एंड से उसको स्ट्रेच करता हूँ। जब मैं स्ट्रेच करूंगा तो नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ पर ये जो रॉड है या ये जो वायर है इसके अंदर चेंज आना स्टार्ट होगा। इस किस्म का चेंज आएगा, इसकी लेंथ में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ है यूनी एक्सल लोडिंग, यूनी एक्सल लोडिंग का मतलब होता है कि आप बॉडी को इस तरह से अटैच करो और उसके ऊपर इस तरह से फोर्स अप्लाई करो कि वो उसके जो एक्सिस है, जो उसके सेंटर में से पास होने वाली लाइन है, उसके पैरेलल हो। तो ये जो फोर्स अप्लाई करने का तरीका है ये कहलाएगा यूनी एक्सल लोडिंग। अब जैसे ही आप इसको स्ट्रेच करोगे फोर्स अप्लाई करके, तो नतीजे के तौर पे क्या रिजल्ट निकलेगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेंगे और इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके इस एक्शन फोर्स के रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे जो कि इसकी
ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन करने की कोशिश करेगी। तो अगर आप उस फोर्स को इस एरिया से डिवाइड कर दो, जिस एरिया के ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स जिस एरिया के ऊपर अपीयर हो रही है, उस फोर्स को उस एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो जो रेशो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस। यहाँ पर ये इंटरनल फोर्सेस होंगी जो कि इसकी ओरिजिनल हालत को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो ये रिस्टोरिंग फोर्सेस भी कहला सकती हैं और इंटरनल फोर्सेस भी कहला सकती हैं। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करोगे, ये आपने एक्शन फोर्स अप्लाई की, ग्रीन कलर का जो एरो है एक्शन फोर्स है, और ये रिएक्शन फोर्स है, येलो वाली रिएक्शन फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया, येलो इंटरनल फोर्स है जो कि रिएक्शन या रिस्टोरिंग फोर्सेस है। एक्शन होगा तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा हमारे पास। तो हम कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इसको एक्सटेंड करेगी, और येलो जो है वो इंटरनल फोर्सेस होंगे जो इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस इज अ क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस विद इन द बॉडी। अब स्ट्रेस क्या है, ये बेसिकली बता रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है विद इन द बॉडी। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको अगर आप एरिया से, जिस एरिया के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अपीयर हो रही है, उससे डिवाइड कर दो, तो वो हमारे पास मैथमेटिकली स्ट्रेस बन जाएगा। और यूनिट इसका हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या ब्रिटिश एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या यूएस सिस्टम में पाउंड्स पर इंच लिया जाएगा। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपको पता है कि ये पास्कल के बराबर होता है। अब ये जो फोर्स मैंने अप्लाई की है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर थी, और ये जो स्ट्रेस की फोर्सेस अपीयर हो रही हैं, या जो हमारे पास ये रिस्टोरिंग फोर्सेस अपीयर हो रही हैं, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इस स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, या दूसरा इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी नाम देते हैं। दो नाम दिए जा सकते हैं इस सिचुएशन में कि अगर स्ट्रेस जो है, फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास जो स्ट्रेस होगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, या दूसरे लफ्जों में उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होगा जो कि सरफेस के साथ 90 डिग्रीज बना रहा होगा। 90 डिग्रीज बनाने वाला जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल या नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा से अमूमन स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इस फोर्स के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स अपीयर हो रही है, तो ये हमारे पास जो है फोर्स पर यूनिट एरिया दैट विल बी स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा। यूनिट इसके पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस बेसिकली जो है मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, और हर मटेरियल की एक लिमिट होती है कि वो उस लिमिट तक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, और अगर स्ट्रेस को उस लिमिट से ज़्यादा कर दिया जाए तो हमारे पास मटेरियल डैमेज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि मटेरियल फेलियर हो गया उसमें। तो जब भी मटेरियल को हम यूज़ करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, ताकि उससे ज़्यादा स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। ये सारी बातें जो है इस वीडियो में बताई गई थी। उसके बाद बारी आती है ओरिजिनल लेंथ को, मैं कहूँ कि वो L है, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ चेंज होके इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो इंक्रीज इन लेंथ होगा, यहाँ पर इस फिगर में आप देखो, ओरिजिनल लेंथ हमने कहा कि L है, मैंने यहाँ से इस रॉड को सपोर्ट से अटैच कर दिया, इधर से फोर्स अप्लाई की, इस फोर्स ने डिफॉर्मेशन पैदा की, और अब ये वायर क्या कर रही है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जाने की कोशिश कर रही है, और इस रॉड के अंदर एक इंटरनल फोर्सेस यानी कि रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रोड्यूस हो गए, जो कि इसके इक्वल और ऑपोजिट होंगी इस केस में। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस अपीयर होंगी
इस केस में दैट फोर्सेस डिवाइडेड बाय दिस एरिया विल बी स्ट्रेस, और इसकी ओरिजिनल लेंथ अगर L थी, फोर्स अप्लाई करने से इसकी लेंथ डेल L इंक्रीज हो गई। अब डेल L को अगर L से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल L अपॉन L। अब ये जो स्ट्रेन है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के नतीजे में पैदा हुआ। अगर तो टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी कि लेंथ को इंक्रीज करने वाला स्ट्रेस है, तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और ये स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है ये टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगी। और अगर कंप्रेशनल स्ट्रेस है तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेन होगी। नॉर्मल होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से पैदा हो रही है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेन को डिफाइन कर देंगे। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। क्यों कोई यूनिट नहीं है? क्योंकि स्ट्रेन जो है वो दो एक जैसी टर्म्स की रेशो है, दो एक जैसी डायमेंशंस रखने वाली टर्म्स की रेशो है। यानी कि ये भी लेंथ के डायमेंशंस हैं, इसकी भी डायमेंशंस लेंथ वाली है, तो नतीजे के तौर पे स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है वो 3 तरह की हो सकती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी, यानी कि जो कि जाके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होगी। If the applied force produces change in length of the body, the stress associated is called as tensile stress, या longitudinal stress हम इसको कहेंगे। टेंसाइल तब होगी जब लेंथ इंक्रीज हो रही हो, और कॉम्प्रेशनल तब होगी जब लेंथ डिक्रीज हो रही हो। और ये कैसे डिफाइन होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया से। और फोर्स क्या होती है? जो अगर आप वेट को सस्पेंड कर रहे हो वायर के साथ, तो वेट आ जाएगा जो आपने सस्पेंड किया mg, और पाई आर स्क्वायर जो सर्कुलर एरिया होता है। इसी तरह से अक्सर सिचुएशंस में ये होता है कि हम लोग जो है एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो फोर्स जाके बॉडी की लेंथ की बजाय उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज करती है। यानी कि इस तरह से फोर्स अप्लाई की जाती है कि वो जाके उसका वॉल्यूम चेंज करी होती है। तो इस तरह के जो स्ट्रेस है हमारे पास, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब यहाँ पर ये फिगर आप देखो, टेंसाइल फोर्सेस होंगी जो लेंथ को इंक्रीज करेंगी, और कंप्रेसिव फोर्सेस होंगी जो लेंथ को डिक्रीज करेंगी। स्ट्रेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यहाँ पर एक और तरीके से डिफाइन किया, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। सिग्मा से इसको डिनोट किया जाता है। और जो है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज यूजुअली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स से भी अक्सर बुक्स में डिफाइन किया गया होता है, और रिस्टोरिंग फोर्स से भी डिफाइन किया गया होता है, मगर प्रॉपर जो तरीका है वो रिस्टोरिंग फोर्स वाला ही है। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस दैट टेंड्स टू स्ट्रेच द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर कोई स्ट्रेस लेंथ को इंक्रीज करिए तो उसको हम कहेंगे दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? द स्ट्रेस दैट टेंड्स टू कंप्रेस और शॉर्टन द मटेरियल, जो कि लेंथ ऑफ द मटेरियल को डिक्रीज कर रहा हो, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगा। अब एक और स्ट्रेस है जो कि वॉल्यूम को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। If the applied forces produce change in volume of the body, the stress associated is called as volumetric stress. और volumetric stress जो है ये जाके क्या करेगा? वॉल्यूम को जो है चेंज करेगा। ठीक है, जैसे आप जो है किसी बैलून को ले लेते हो, बैलून के अंदर आप एयर फिल करते हो, वो क्या कर रही होती है? बेसिकली उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही होती है। या किसी मटेरियल को वाटर के अंदर आप प्लेस कर देते हो, तो वाटर के अंदर जब प्लेस करेंगे तो वाटर उसके ऊपर चारों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो चारों डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करेगा, उससे वाटर उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करोगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया या प्रेशर के बराबर होगा। जी सर, ये जो चेंज प्रोड्यूस हो जाती है जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एंड टेंसाइल या शियर स्ट्रेस, सर ये रिस्टोरिंग फोर्स की मदद से प्रोड्यूस हो जाती है या हमारी अप्लाइड फोर्स की वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो रिस्टोरिंग
वो इसका रिएक्शन होता है। जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करोगे, डिफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे होगे, तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेन होगा, और जो आपने फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई की है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर ही होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेस। सर फिर प्रेशर अगर हम लोग कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स होगा और जो हमारे पास स्ट्रेस होगा वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये डिफरेंशिएट हम लोग इस तरह कर सकते हैं इसको? बिल्कुल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में फिर हम यही सिचुएशन अप्लाई करते हैं कि प्रेशर भी कह सकते, मगर प्रेशर का लफ्ज यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि प्रेशर एक जनरल टर्म है, जबकि यहाँ पर आप एक ऐसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो कि एरिया टू एरिया चेंज भी हो सकती है, तो वो एरिया टू एरिया चेंज होने की वजह से फिर स्ट्रेस कहलाती है कि वो उसका मेन मकसद होता है डिफॉर्मेशन पैदा करना, जबकि प्रेशर का मेन मकसद डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना नहीं हो रहा होता। इसी तरह से वीडियो में आपने देखा कि एक और तरह का भी स्ट्रेस की बात की गई थी, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस था, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस था, और तीसरा जो है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस था। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होगा जो कि ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करेगा। शेयर स्ट्रेस ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करता है। टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंथ को चेंज करता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज करता है, और शेयर स्ट्रेस शेप को चेंज करता है। शेप किस तरह से चेंज हो सकती है? यहाँ पर आप देखो, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने यहाँ इस सरफेस से फिक्स कर दिया। अब मैं अपने हाथ से इसको इस तरफ पुश अगर करूं, यानी कि इस जगह के ऊपर हाथ रखूं और पुश करूं इसको इस डायरेक्शन में, पहले हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो वर्टिकल टू दिस सरफेस अप्लाई कर रहे थे, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस अप्लाई कर रहे थे, उसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हो रही थी। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं इस तरह से कि वो इस सरफेस के पैरेलल हो और यहाँ से मैंने इसको फिक्स किया हुआ, तो पैरेलल फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे वो फोर्स कहलाएगी टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि ऐसी फोर्स जो कि सरफेस के पैरेलल होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इसकी शेप को चेंज करेगी, और शेप जब चेंज होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है? शेयर स्ट्रेस। जैसे ये मैंने फोर्स अप्लाई की, यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिलहाल आप इसको इग्नोर करो, इसको हम जब डिटेल से शेयर स्ट्रेस पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सपोज करो कि एक ये बॉक्स था, इसको मैंने इस सरफेस पे फिक्स कर दिया, और यहाँ से ये येलो कलर की फोर्स इस सरफेस के पैरेलल अप्लाई की, तो अब जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ये शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। और शेयर स्ट्रेस क्या होती है? वो पैरेलल टू द सरफेस होती है, और उसके नतीजे में क्या होगा? ये वाला इसका पोर्शन आगे की तरफ मूव करेगा और इस तरह से इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जब शेप चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस है, और जो स्ट्रेन होगा वो फिर शेयर स्ट्रेन कहलाएगा। अब ये जो है हम लोग डिटेल से जो है इसको बारी बारी इंक्रीज होगी। अब ये जो फोर्स अप्लाई मैं कर रहा हूँ ये इसमें डिफॉर्मेशन पैदा कर रही है, और डिफॉर्मेशन के नतीजे में इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस अपीयर होंगे, और रिस्टोरिंग फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस अप्लाइड फोर्स होंगी। तो अगर आप रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ले लो यहाँ पर, तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। लॉन्गिट्यूडनल का लफ्ज इसलिए लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इस तरह से हमारे पास ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ये दो टाइप्स की होगी, कंप्रेशनल या टेंसाइल। अगर लेंथ इस वायर की इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब ये ओरिजिनल लेंथ थी L, डेल L इसमें इंक्रीज आया तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ हमारे पास सिग्मा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन हमारे पास कहलाएगा। इसी तरह से ये वाली फिगर आप देखो, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करो और जो है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया आप अप्लाई कर रहे हो दैट विल बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आप देखो चारों तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो
तो ये एक तरह से प्रेशर आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर तो प्रेशर का लफ्ज हम यूज कर सकते हैं, मगर इस केस में प्रेशर का लफ्ज यूज नहीं हो सकता। और एक और सिचुएशन हो सकती है कि मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स हो, उसको मैं नीचे से फिक्स कर दूं और इस सरफेस के ऊपर एक पैरेलल फोर्स अप्लाई करूं। ये जो पैरेलल फोर्स होगी ये टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगी। अगर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करें तो इस तरह से ये क्यूब जो है डिफॉर्म होकर इस तरह से पैरेललोग्राम बनाएगा। तो ये जो शेप इसकी चेंज हो गई है, हम कहेंगे ये किस स्ट्रेस की वजह से हुई है? शेयर स्ट्रेस की वजह से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और शेयर स्ट्रेस को जो है टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास 3 तरह की स्ट्रेस होंगी: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पैदा होगा और शेयर स्ट्रेस से शेयर स्ट्रेन पैदा होगा। तो जैसे हमारे पास स्ट्रेस की 3 टाइप्स हो गई, इसी तरह से स्ट्रेन की भी जो है हमारे पास 3 टाइप्स हो गई। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको हम यहाँ तक ही जो है महदूद करते हैं, क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेंथ कम है स्टूडेंट।